ہاں تو یہ دیوبندی جو ہے، دیوبندی وہابی جو انگریز کے ایجنٹ لوگ ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں ہاں کا کرشمہ اپنے مطلب کے لیے اپنے دین اسلام اپنے مذہب بنایا ہے۔ اور ہاں دیوبندیت جہاں سے شروع ہوئی ہے ان لوگوں کا دھرم، وہ ہاں قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی ہے۔ اچھا جہاں قاسم نانوتوی جو تحذیر الناس ایک کتاب لکھی جس میں ختم نبوت کا صاف صریح انہوں نے انکار ہاں کیا ہے، اچھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار صاف کیا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ دیوبندی حضرات اپنے مطلب کے طور پر، اپنے خواہش کے مطابق ان لوگ شریعت کو جس طرح چاہتا ہے وہ سر ادھر موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا میں بتاتا ہوں، یہ ہاں دیوبندی وہابی اپنے مکروہ چہرہ اپنے بیگانے کے منہ دیکھ کر فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ سنیے یہ ہاں بات، ایک کتاب ہے سنگین فتنہ، صفحہ نمبر 56، اس کو لکھا ہے دیوبندی مفتی سعید احمد دیوبندی نے لکھا ہے، جن خلاف شریعت باتوں کی آج تبلیغ ہو رہی ہے، اگر یہ باتیں دوسرے مسلک کے لوگ کرتے تو کب کے ہمارے علماء حضرات نے کفر کا فتویٰ دے دیا ہوتا، مگر ان تبلیغیوں کو اپنا سمجھ کر یہ خاموش ہیں۔ سنگین فتنہ صفحہ نمبر 56 پہ لکھا ہے، یہ مفتی سعید احمد دیوبندی نے۔ تو بتائیے، یہ تبلیغی جماعت والے کو اپنا سمجھ کر ان لوگ خاموش ہے، دوسرے مسلک کے ہوتے تو اس پر کفر کا فتویٰ جڑ دیتے یہ لوگ، لیکن اپنا سمجھ کر کے ان لوگ خاموش ہے، مطلب کہ اپنا اور بیگانہ دیکھ کر کے ان کا فتویٰ چلتا ہے، سمجھے۔ دوسری کتاب، ان تبلیغیوں کو اپنا سمجھ کر علماء خاموش ہیں، ورنہ کفر کا فتویٰ کب کا دے دیا ہوتا۔ تبلیغ اور تحریف علماء حق کی نظر میں، کتاب کا نام ہے تبلیغ اور تحریف علماء حق کی نظر میں، صفحہ نمبر 7 میں لکھا ہے۔ تو میں سامعین و ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ دونوں حوالوں کو ایک بار پھر سے سنیے، دیکھیں، غور سے پڑھیں، ان دیوبندیوں کی کارستانی کا اندازہ کریں اور ان کی اخلاق، علمی اور شرعی خیانت کا ننگا ناچ دیکھیں کہ دوسرے مسلک کے لوگ ایسا کرتے تو کب کا کفر کا فتویٰ دے دیا ہوتا، مگر اپنے ہیں، اس لیے علماء دیوبند کیا ہے، خاموش ہیں۔ خاموش ہے۔ کیا یہ شریعت سے بغاوت نہیں ہے؟ کیا یہ احکام شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت کے ٹھیکیدار کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ آخر یہ حق ان دیوبندیوں کو کس نے دیا کہ جو جی میں آئے، جیسا دل چاہے ویسا فتویٰ دے؟ لیکن آپ اللہ رب العزت کی قدرت تو دیکھیں کہ ان مفتیان دیوبند کی ان غیر ذمہ دارانہ اور مذموم حرکات و خرافات، یعنی اپنا بیگانہ دیکھ کر فتویٰ دینے کی سزا کیسے ملتی ہے، وہ سنیے غور سے۔ غیر سمجھ کر کفر کا فتویٰ جڑ دیے، لیکن کیا ہوا اس کے بارے میں ان کے علامہ، بہت بڑا علامہ ہے عامر عثمانی دیوبندی، لکھتا ہے اپنے کتاب میں ماہنامہ تجلی دیوبند، اپریل 1956 عیسوی میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 9، شمارہ نمبر 2، جلد نمبر 7 میں یہ لکھتے ہیں، اخلاص کا جنازہ نکالنے والی نفرت و عداوت کی نشاندہی کے لیے تقریر و تحریر کے 10 شہادتیں عوام کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن صرف نشاندہی نہیں بلکہ ان کی نفرت و عداوت کا ڈھنڈورا بھی اس فتوے نے پیٹ دیا، جس میں قاسم العلوم غزالی وقت حضرت العلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کو خود مفتیان دارالعلوم دیوبند نے نہ صرف اہل سنت و جماعت سے خارج کر دیا بلکہ نعوذ باللہ من ذالک کافر ٹھہرا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا قاسم کی عبارت کو وہ جماعت اسلامی کے کسی فرد کی عبارت سمجھے۔ ماہنامہ تجلی دیوبند، اپریل 1956 عیسوی، صفحہ نمبر 9،
शुमारा नंबर 2 जिल्द नंबर 7 में इन्होंने लिखा। अब इसमें देखिएगा, कासिम नानतवी को मुफ्तियाने देवबंद ने अहले सुन्नत व जमात से खारिज और काफिर क्यों ठहराया, इसका पसे मंजर क्या है, उसका जिक्र करते हुए खुद आमिर उस्मानी देवबंदी धर्म के पेशवा गुरु लिखता है, किसी ने हजरत मौलाना कासिम की चंद सत्रें उनकी किताब तस्फियतुल अकाइद, यानी कासिम नानतवी की किताब तस्फियतुल अकाइद है, उनसे नकल करके दारुल देवबंद को भेजी और पूछा कि इन सत्रों के लिखने वाले के बारे में जनाब का शरई फैसला क्या है। महानामा तजल्ली देवबंद अप्रैल 1956 ईस्वी, सफा नंबर 10, शुमारा नंबर 2 जिल्द नंबर 7। मगर इन सत्रों के या किताब के लिखने वाले का नाम पोशीदा रखा गया, यानी छुपा दिया गया, यानी जो बात थी वो बात सिर्फ लिख करके दारुल देवबंद को भेजा गया। अब उसको देखते ही मुफ्तियाने दारुल देवबंद ने मनकुला इबारत को बकौल आमिर उस्मानी जमाती इस्लामी के किसी फर्द की इबारत समझकर शरई फैसला ये दिया। उसका जवाब क्या है, जवाब सही है कह करके ऐसा लिखा, उसको खुद आमिर उस्मानी लिखते हैं, ऐसे अकीदा वाला काफिर है। क्या लिखते हैं ये लोग, फतवा क्या दिए, ऐसे अकीदा वाला काफिर है जब तक वो तजदीद ईमान व तजदीद निकाह ना करे, उससे कतई ताल्लुक करे। महानामा तजल्ली देवबंद अप्रैल 1956 ईस्वी, सफा नंबर 10, शुमारा नंबर 2 जिल्द नंबर 7। इस फतवे के बाद क्या गुल खिले, कितने शोर शराबे हुए और कैसी कैसी हंगामा देवबंदियों में हंगामा आराई की गई। इससे सिर्फ नजर करते हुए देवबंदियों के अकाबिर परस्ती का एक जिंदा जावेद तस्वीर मुलाहिजा करें आप भी। उन्हीं की किताब, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जबानी और उन्हीं के सीने में चढ़ करके मैं बात कर रहा हूँ। आमिर उस्मानी देवबंदी लिखता है, ना हम एक मिनट को भी, क्या लिखता है, ना हम एक मिनट को भी ये तस्वुर कर सकते हैं कि हजरत मौलाना कासिम के कलम से ऐसी बात निकल सकती है जो कुरान और सुन्नत की सरासर खिलाफ हो। मजमून निगार और हमारा बिलयकीन यही ख्याल और फैसला है कि गलती फतवा देने वालों की है, यानी दारुल देवबंद के मुफ्ती जो फतवा दिए ना वो गलती पर हैं, लेकिन कासिम नानतवी गलत नहीं हो सकते हैं। ये कहाँ लिखा है, माहनामा तजल्ली देवबंद अप्रैल 1956 ईस्वी, सफा नंबर 10 में लिखा है। बताइए, ये दोगला पॉलिसी अख्तियार करके देवबंदी अवाम को क्या जाहिर करना चाहते हैं कि कासिम नानतवी मुसलमान थे और उनके शरीयत, उनकी बातें शरीयत के खिलाफ नहीं थी, लेकिन मुफ्तियाने देवबंद फतवा दे दिया कुफ्र का और उनको तजदीद ईमान, तजदीद निकाह करने का हुक्म का फतवा दिया। उनका फतवा ही गलत है, लेकिन कासिम नानतवी गलत नहीं हो सकते। क्यों तो इन लोगों का नबी या रसूल या खुदा क्या समझते हैं पता नहीं, इनकी ये जाने देवबंदी ही खुद बता सकते हैं क्या समझते हैं कासिम नानतवी को, जो दिन दहाड़े ज़रब यज़रबो के गर्दान, जैसे कि अशरफ अली थानवी अरवाह सलासा में लिखे हैं कि सब मुरीद लोग भी और उनके शागिर्द लोग भी और अवाम लोग भी सामने मौजूद थे। एक स्टेज में चारपाई बिछी हुई थी, कासिम नानतवी को रशीद अहमद गंगोही लिटाया, इसमें लेट जाओ, उन्होंने चित लेट गया और उसी के तरफ करवट करके उसके सीने में आशिक सादिक के तरह हाथ फेरने लगा। कासिम नानतवी को शर्म आ गई, ये क्या नाजेबा हरकत कर रहा है, लोग क्या कहेंगे, कहने वाले कहेंगे, कहने दो, हमारा काम क्या है वो करेंगे, वो उन्होंने कर छोड़ा। बहरहाल मुझे इन तरफ नहीं जाना, इनके गिलाजत में देखें, देख लिया तमाशा आपने, फतवा देने वाला गलत है, मुफ्तियाने देवबंद गलत है, मगर अकाबिर परस्त देवबंदियों के नजदीक कासिम नानतवी जो खत्म नबूवत का इनकार किया गलत नहीं हो सकता, माअज़ल्लाह, बल्कि एक मिनट के लिए तस्वुर भी नहीं कर सकते, ये भी लिखा है। ये अकाबिर परस्ती नहीं तो और फिर क्या है। इन देवबंदरों को कहेंगे ऐसे लोग के पीछे जो खुद के फतवे से, दारुल के फतवे से ही वो काफिर है और उसको कासिमुल उलूम अपना अकाबिर परस्ती
मान करके क्या साबित करना चाह रहे हैं हम्म, और उनका दीन धर्म में क्यों चल रहे हैं हम्म, और उनके बनाए हुए दीन धर्म के पीछे चल करके अपने आखिरत को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। और कहता हम्म, है ये कि हमारे अकाबिर यानी देवबंदी कैसे हुआ, कब से चला और देवबंदियत किसको कहते हैं, उनका दीन हम्म, क्या है। तो हम देखते हैं किताब में सोहबत बाउलिया सफ़ा नंबर 172 में शेखुल हदीस इसका लक़ब है मौलाना ज़करिया कांधेलवी। और हम्म, तोहफ़े कादियानियत ये किताब है जिसमें सफ़ा नंबर 125 में तकीउद्दीन नदवी मज़ाहिरी ने लिखा है। क्या लिखा है साफ तौर पर, चलो एक किताब में आ गई बातें तो आ गई, लेकिन एक दो किताब नहीं कई किताबों में मौजूद है ये इबारत। क्या है वो, हम फोन आ रहा है, जी फोन आ रहा है किसी का। अच्छा कट कर दीजिए, देखिए सुन लीजिए इसको। हम ये क्या लिखा है, हमारे अकाबिर हजरत गंगोही और हजरत नानतवी ने जो दीन कायम किया था उसको मजबूती से थाम लो। अब कासिम और रशीद पैदा होने से रहे, बस उनकी इत्तबा में लग जाओ। किसकी इत्तबा में हम्म, लग गया ये देवबंदी लोग, रशीद और गंगोही के, हम्म, समझे। देवबंदियत वो धर्म है जो रशीद और गंगोही की इत्तबा में लगा है। इत्तबा तो रसूल की करनी चाहिए था, है ना, हम्म, अल्लाह के नबी की। हम लोग हम्म, इमाम की इत्तबा नहीं बल्कि अताअत करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। और हम्म, इत्तबा सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन इन और वो लोग देवंदर लोग रसीद आप जी रसीद और गंगोही करते हैं। हाँ, रशीद और गंगोही की इत्तबा, उन्हीं के पीछे चलना वही हम्म, देवबंदियत है। हम्म, और रशीद अहमद के दावा बहुत है, अगर नहीं करेगा हम्म, तो उन लोगों के इत्तबा नहीं करेगा। जैसे कि लिखा है, सुन लो हक वही है जो रशीद अहमद की जबान से निकलता है, और बकसम हम्म, कहता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ मगर इस जमाने में हिदायत व निजात मौकूफ है मेरी इत्तबा पर। तज़किरतुर रशीद सफ़ा नंबर 17 जिल्द नंबर 2 में लिखा है। तो देवबंदी के हिदायत और निजात किस में है, रशीद हम्म, और नानतवी के इत्तबा में इन हम्म, लोगों की निजात है। तो इनको छोड़ नहीं सकता है ना। जितने मुफ्तियाने दारुल उलूम देवबंद सब गलत हैं, वो मुफ्ती हम्म, का फतवा गलत है, लेकिन हम्म, कासिम नानतवी गलत नहीं हो सकते, वो तो मुसलमान थे। अरे हम्म, यार इतने गुस्ताखी किया है ये लोग, उनकी गुस्ताखी को अगर लोग सुन लें तो इन देवबंदियों के मौलवी को इतना पीटे जूते निकाल करके, सर में एक हम्म, बाल और जिस्म में एक खाल मौजूद ना हो। इतने बढ़ाया है इन लोगों ने, मरदूदों ने। क्या इन लोगों की दिमाग है या नहीं, देवबंदी मुल्ला देवबंदर मुल्ला की दिमाग उमाग रहता नहीं है। हम्म, इसलिए कि उन लोग अपने अक्ल में दिमाग में, कान में, आंख में ताला लगा करके वो चाबी को समुंदर में फेंक देता है। हम्म, समझे, इन लोगों के अकल बिल्कुल ताले पड़े हुए हैं, इसीलिए हम्म, देव बंद है, वो बंद है, खुलेगा नहीं। हम्म, समझे। हम्म, मसीहा गंगोही एक किताब लिखा, महमूदुल हसन गालियों का सरदार, बहुत बेनजीर गालियां देने वाला, जदीद जदीद गालियां के इंतखाब किया है वो। हम्म, कोई अगर गाली सीखना चाहे तो मैं कहूँगा कि महमूदुल हसन देवबंदर की किताब अशहाब साकिब पढ़ ले, जिसमें किस्म किस्म के डिजाइन डिजाइन की गालियां लिखी हुई हैं और बहुत सारी गालियां बका है आला हजरत को, है ना। उनके जब फतवे के निस्तर इन लोगों के सीने में चुभा दिया आला हजरत, जिसके जलन, तड़प, कर्ब और दर्द को बर्दाश्त ना करके गालियां बकना शुरू किया। और गालियां देना इन लोगों के धर्म में क्या है बता दूंगा मैं, ये इबारत सुन लीजिए। मरसिया गंगोही के सफ़ा नंबर 9 में लिखता है बड़े धड़ल्ले से, हिदायत जिसने ढूंढी दूसरी जगह दूसरी जा हो गया गुमराह, वो हम्म, मिर्जावे हिदायत थे कहें क्या नस्से कुरानी। हम्म, बताइए, अगर दूसरी जगह हिदायत तो कहीं नहीं मिलेगी, ये रशीद अहमद गंगोही की ही दर पे आओगे तो तुम्हें हिदायत मिलेगी। तो इसीलिए देवबंदी लोग अपने अकाबिर को छोड़ते नहीं है, है ना। हम्म, बहुत
तो मजबूती से अकाबिर परस्त में इन लोग डूबा हुआ है और डूब करके अपने आखिरत और ईमान को इन लोग बर्बाद कर रहा है। समझे? जो भी देवबंदी अगर सुनेगा, अगर हक बजानिब होगा और इंसाफ की नजर से अपने अक्ल और शूर जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है अगर गौर करेगा ना तो देवबंदियत को तो ऐसे ही लात मार देगा। समझे? अल्लाह तमाम जी पुनवा बार बार आ रहा है, पता नहीं। अल्लाह तमाम मुसलमानों को ऐसे लोगों से, ऐसे बदतमीज लोगों से अल्लाह महफूज रखे, बचाए। अब इसमें गाली जो बका है ना ये अस्हाब साकिब में, तो एक किताब मुझे याद आ गई, मलफूजात फ़कीहुल उम्मत, सफ़ा नंबर 132 है। और ये क्या है, इरशादात हजरत अक़दस महमूद हसन। वही क्या लिखता है, अलबत्ता मुशरिकीन का तरीका गालियां देना है, आज उनकी ज़ुर्रियत गालियां दे रही हैं तो दिया करे, हमें कोई परवाह नहीं, बेफिक्र रहो, हम तुम्हें गालियां नहीं देंगे। तेज गालियां देना मुनाफिक का काम है, नीज गालियां देना मुनाफिक का काम है, उसकी अलामत है। तो बताइए ये गाली बक करके आला हजरत को अपनी मुनाफिकत का खुद की तहरीर से साबित हुआ मुनाफिक। और दूसरा क्या लिखे इसमें क्या है, अलबत्ता मुशरिकीन का तरीका गालियां देना है, गालियां दे करके लिख करके आला हजरत को ये महमूदुल हसन अपने उसूल से, अपने कौल से ये मुशरिक हुआ कि नहीं? ये मुशरिक का तरीका गालियां देना, तो गालियां दे करके आला हजरत को अस्हाब साकिब में 360 से ज्यादा कई गालियां बका है, उसमें बेशुमार गालियां बका है। तो ये मुशरिक का औलाद भी हुआ और अपने उसूल से मुनाफिक भी हुआ, जैसा कि मलफूजात फ़कीहुल उम्मत सफ़ा नंबर 132 में लिखा है। तो इन देवबंदियों से तमाम मुसलमानों को, तमाम मोमिनीन व मोमिनात को इनके शर से महफूज व अमन रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।